اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی و ضعیفان شکست رات کشتی باحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کے 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر کی رات، آج کی رات ہماری ایسوسی ایشن اور ٹیم مل کر سنی رضوی نیٹ ورک کے چینل کی جانب سے ایک خاص پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید مصطفیٰ علی مصباحی اشرفی دامت برکاتہ عالیہ۔ آج کا ناظرین، آج کا جو عنوان جو ہے شب قدر کی فضیلت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور میں تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس لائیو پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے آپ کے دوست اور احباب پر، تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ کر ثواب دائر حاصل کریں۔ ناظرین چلیے سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز ہم لوگ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر تمام سامعین کی دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں گے۔ سماعت فرمائیے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام حسان الہند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سماعت کرنے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر
اب رحم بدوں پر بھی برسا دے والے، بدوں پر بھی برسا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور خادم رکھے چلا، حرم کی زمین اور خادم رکھے چلنا، ارے سر خاموخواہ ہو جانے والے، ارے سر خاموخواہ ہو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے کھیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کھیت خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ارے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جان بجا والے، کہ راستے میں ہے جان بجا والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب خانے غرام والے، ہے منکر عجب خانے غرام والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چہرانے والے، ہاں تم نے دیکھے ہیں چہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، مہرما کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی کیا کری اچھی لگی، تیرے خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرزی عاشقی اچھی لگی، کی نماز عصر نے ہے در قضا تیرے لیے، حق تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو یہ بڑی اچھی لگی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزح کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب زباں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا جو لائیو پروگرام لیلۃ القدر کی رات کا جو ہے یعنی فضیلت شب قدر کے عنوان پر انشاءاللہ آن لائن پر تشریف آ چکے ہیں ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ڈاکٹر سید مصطفیٰ علی مصباحی اشرفی دامت برکاتہ عالیہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ اب تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں اس لائیو پروگرام کو آپ اپنے دوست اور احباب کے چینل میں شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اگر یہ پروگرام دیکھ کر ثواب ترین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، سنی رضوی نیٹ ورک چینل امام احمد رضا ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ پروگرام خصوصی لیکچر جو فضیلت لیلۃ القدر کے عنوان پر طے کیا گیا، میں تمام اراکین امام احمد رضا ایسوسی ایشن چنئی تمل ناڈو کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تمام ناظرین اکرام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا ہم سب کو فخر عطا کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے
کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم برکتوں، سعادتوں اور فضیلتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس رات اور اس ماہ مقدس میں ایک ایسی رات ہمیں عطا ہوئی جس کے تعلق سے خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ سبحان رات اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک حق ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 مخصوص راتیں عطا فرمائی۔ بے شک ان 5 مخصوص راتوں میں، 5 مبارک راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے۔ پانچوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک جو مبارک رات، ان 5 میں سے پہلی مبارک رات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے لیلۃ المعجزہ، معجزے والی رات۔ سبحان اللہ، یہ 5 مبارک اور مخصوص راتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، جو دوسرے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور بلندی کو خصوصی طور پر بتاتا ہے۔ 5 راتوں میں سے پہلی رات لیلۃ المعجزہ، یعنی جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر رہتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سبحان اللہ، بے شک جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قمر میں آتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ ساعت قریب آئی اور چاند شق ہوا۔ انشقاق قمر، چاند کا شق ہونا، وہ رات، وہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑی عظمت والی رات تھی، بڑی مبارک اور مسعود رات۔ دوسری رات جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، دعوت و قبول دعوت کی رات، یعنی جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنات کو بھیجا گیا، جنات کا گروہ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمایا۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نبی نہیں بلکہ عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تمام مخلوقات جس میں بالخصوص انسان اور جن شامل ہیں، ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جن کا رب اللہ ہے، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے تو پیارے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ تو دوسری مبارک رات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ دعوت اور قبول دعوت کی رات، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تیسری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ ماہ رجب المرجب میں آتی ہے، جو شب معراج ہے، جس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
जिसको हम उर्फ आम में शब मेराज कहते हैं। ये तीसरी मुबारक रात है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। चौथी अजमत वाली रात जो अता हुई वो माह शाबान और मुअज्जम में आती है, लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जिसका भी जिक्र कुरान मजीद में यूं किया गया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। यानी जिसको उर्फ आम में शब बारात कहते हैं, ये चौथी रात है, लैलतुन निस्फ मिन शाबान। अहादीस की रोशनी में अगर कहा जाए तो लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात। और जो 5वीं रात मुबारक रात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई वो है लैलतुल क़द्र, जिसका जिक्र सूरह क़द्र में अल्लाह सुब्हानहु व तआला यूं फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो 5 मुबारक और मसूद अजमत वाली रातें जो हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुई, जो इससे पहले किसी को अता नहीं हुई। और बिलखुसूस ये शब कद्र इतनी अजमत वाली है कि इसके अजमत वाला होना खुद कुरान शाहिद है इसकी अजमत पर, इसकी शराफत पर। आप गौर करें, कद्र, रब ने फरमाया कद्र वाली रात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तहकीक के हमने उसको नाजिल किया कद्र वाली रात में। उसको से मुराद कुरान मजीद। रब कायनात फरमाता है कि हमने इस रात को कुरान के नुज़ूल के लिए मुंतखब किया था और इस रात हमने कुरान पाक को नाजिल किया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि कुरान मजीद लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर हर साल लैलतुल क़द्र में जितना हिस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे साल में जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाया जाता था या वही इलाही के जरिए पहुंचाया जाता था, उतना हिस्सा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लैलतुल क़द्र में लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाता था। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया लैलतुल क़द्र में जो लैल का जिक्र किया गया है, जिस रात का जिक्र किया गया है, वो इब्तिदाई पहली कुरान मजीद के नाजिल होने की वही का मामला है कि कुरान की इब्तिदा में जब कुरान मजीद को नाजिल किया गया वो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। बहरकैफ कुरान के नुज़ूल के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रात को मुंतखब फरमाया। इतनी अजमत और शराफत वाली रात, क्योंकि क़द्र कहते हैं अजमत और शराफत को, इसके कई माने हैं। क़द्र से मुराद अजमत है, क़द्र से मुराद क़द्र वाली रात है, शराफत वाली रात है, बुजुर्गी वाली रात है। लैलतुल क़द्र से लैलतुल क़द्र के कई माने हैं। अजमत और शराफत वाली रात के मुनासिबत से अगर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि इस आय मुबारका में आगे जो आयतें आ रही हैं वो इस रात की फजीलत को बयान कर रही हैं। बिलखुसूस इस सूरह मुबारका में रब कायनात ने खुसूसियत के साथ इस रात की 3 फजीलतों का जिक्र किया है। रब ने फरमाया, हमने कुरान पाक को क़द्र वाली रात में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, महबूब अगर हम ना बताते तो आपको क्या मालूम होता कि लैलतुल क़द्र क्या है। यहाँ एक बात मैं अर्ज कर दूं नाज़रीन के लिए, जहाँ कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में अदराका कहा है, उससे मुराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज का इल्म अता फरमा दिया। तो लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि लैलतुल क़द्र कैसी अजमत और शराफत वाली रात है। इस रात में किन किन उमूर को पाए तकमील को पहुंचाया जाता है, कौन से उमूर होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान
کا مہینہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور جو تمام نیکیوں سے وہی شخص محروم رہے گا جو محروم القسمت ہوگا، یعنی جس کی قسمت میں محرومی لکھی گئی ہے بس وہی شخص اس رات کی نیکیوں سے محروم رہے گا. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں روایت کی گئی ہے. تو معزز ناظرین اکرام، اتنی مبارک و مسعود رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے قرآن اور احادیث سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا کہ آخر لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ رات، قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں اعمال خیر کرنا، اعمال صالحہ کا کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا. ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کرتا رہا، یعنی 1000 سال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں جہاد کیا. تو مسلمانوں کو سن کر بڑا تعجب ہوا کہ 1000 سال، دیکھیے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے 1000 سال یعنی 83 ایئرس اینڈ 3 منتھس، 83 سال بھی اگر لے لیں آپ، 83 سال مسلسل راہ خدا میں جہاد کرتا رہا. جب صحابہ نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بنی اسرائیل کا تھا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. جب تعجب ہوا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک روایت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہماری عمریں اتنی لمبی ہوتی تو ہم بھی راہ خدا میں عبادت کرتے، راہ خدا میں جہاد کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی نازل فرما دی اور کہا غمزدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جو اس رات کو پالے گا اور اس میں عبادت اگر کرے گا تو وہ رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل قرار دی جائے گی. یعنی اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حدیث پاک مسند فردوس میں روایت کی گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات تحفے میں عطا نہیں کی گئی. یہ رات خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے تحفے کے طور پر عطا کیا ہے. تو یہ رات حقیقت میں شب قدر
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक तोहफा है। जब रब की जानिब से कोई चीज तोहफे में दी जाए तो कितनी फजीलत वाली होगी, कितनी अजमत वाली होगी, कितनी बरकत वाली होगी, कितनी शराफत वाली होगी, कितनी सादत वाली होगी, जरा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों। तो रब कायनात की तरफ से ये तोहफा है मुसलमानों के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए। इसीलिए मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में रकम तराज हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करम है कि आपके उम्मती शबे कद्र की एक रात इबादत करे तो उनका सवाब पिछली उम्मत के 1000 माह इबादत करने वालों से ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए रब ने फरमाया खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीने से बेहतर ये रात शब कद्र। पहले हम समझें कि शब कद्र की फजीलत क्या है, उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात को बताया जाएगा कि शब कद्र कौन सी रात है, फिर उसकी गैर मुतय्यन होने की वजह भी इंशाअल्लाह ताला मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये ऐसी रात है जिस रिवायत में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात ऐसी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो ही शब कद्र की शब लगती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ 4 झंडे लेकर जमीन पर नाजिल होते हैं, जमीन पर उतरते हैं। एक झंडा काबतुल्लाह की छत पर नस्ब फरमाते हैं, दूसरा झंडा मस्जिद नबवी या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास नस्ब किया जाता है, तीसरा बैतुल मक़दिस में नस्ब होता है, और चौथा जो झंडा होता है वो मस्जिद तूर सीना के पास नस्ब किया जाता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते होते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अब तुम जमीन में फैल जाओ, क्योंकि लैलतुल कद्र है, तुम जमीन में फैल जाओ। तो फरिश्ते जमीन में फैल जाते हैं, यहां तक कि हर मोमिन के घर में वो फरिश्ते दाखिल होते हैं, और वो मोमिन इबादत इलाही में, जिक्र और अज़कार में, तस्बीह व तहरीर और तक़दीस में, इल्म दीन सीखने और सिखाने में, कुरान सीखने और सिखाने में, रात में अगर अपने वक्त को गुजारता होता है तो वो लोग उसको दुआओं से नवाजते हैं वो फरिश्ते, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। और ये सिलसिला तुलुए फज्र तक, फजर तुलु होने तक ये सिलसिला मुसलसल दुआओं का और इस्तिग़फ़ार मलाइका का सिलसिला चला रहता है। कुरान मजीद की रोशनी में अगर गुफ्तगू की जाए तो कुरान फरमाता है कि ये 1000 महीनों से अफजल रात है, बेहतर रात है, कि इस रात तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका का नुज़ूल होता है। वही बात जो वहाँ हदीस में बताई गई बिल्कुल ऐन कुरान मजीद के मुताबिक है कि रब फरमाता है इस रात मलाइका का नुज़ूल होता है, मलाइका को भेजा जाता है, ज़मीन पर उतरते हैं, मुमिनीन से मुलाकात करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआए रहमत करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं,
सलामती की दुआ करते हैं। यहां तक कि ये भी रिवायतों में आया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनसे मुसाफहा फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील का भी नाजिल होना कुरान मजीद में बताया गया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वल रूह, रूह से मुराद रूहुल कुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस ज़ात है। अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। तो ये सिलसिला तुलुए फज्र तक चलता है, पूरी रात। आज की जो रात है, शब कद्र की जो रात है, सलामती और आफियत की रात है, क्योंकि रब ने खुद फरमा दिया सलाम, सलामती वाली रात है। और ये सलामती हर आफात और बलैयात से सलामती, हर मुश्किलात और परेशानियों से सलामती, हर शर से सलामती, हर बुराई से सलामती, हर उस चीज से सलामती वाली रात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम उस चीज की पनाह मांगते हैं। तो ये सिलसिला तुलुए फज्र तक होता है, और जब फज्र होती है, रोशनी फैल जाती है, सूरज तुलू हो जाता है, तो ये फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। बुनियत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि जब वो वापस जाते हैं फरिश्ते, तो आसमानी दुनिया में रहने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जितने फरिश्ते नाजिल हुए थे, सब के सब तुलुए फज्र में जब वापस होते हैं, तो आसमानी दुनिया में रहने वाले, पहले आसमान पर रहने वाले फरिश्ते पूछते हैं, जब वो जाते हैं ऊपर, तो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ गए थे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाबन फरमाते हैं कि हम दुनिया में थे, क्योंकि आज रात लैलतुल उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लैलतुल कद्र थी। तो वो पूछते हैं, पहले आसमान में रहने वाले फरिश्ते पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बाबत क्या फैसला फरमाया है, यानी उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या फैसला है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ने उनके लिए सलामती वाला फैसला फरमाया है, अल्लाह ने उनके नेकोकारों की इबादत को कबूल कर लिया है, और उन नेकोकारों और सालिहीन की रिकमेंडेशन से, उनकी सिफारिश से अल्लाह ने गुनहगारों को भी बख्श दिया। जब पहले आसमान में रहने वाले फरिश्ते इसको सुनते हैं, तो रब कायनात की तस्बीह व तक़दीस व तकबीर बयान करते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह दूसरे आसमान पर भी मामला पेश आता है, वैसा ही जवाब दिया जाता है। ऐसा ही तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर, यही वहां रहने वाले फरिश्ते वही सवाल करते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसका वही जवाब देते हैं। यहां तक के सिदरतुल मुंतहा पहुंच जाते हैं, वहां रहने वाले फरिश्ते भी यही सवाल करते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें यही जवाब देते हैं। और बिल आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर रहने वाले जितने फरिश्ते आए थे, सबसे कहते हैं कि अपनी अपनी जगहों पर लौट जाओ, सब वापस चले जाते हैं। तो जब सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाले फरिश्ते ये सुनते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया लैलतुल कद्र में उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी है, और सालिहीन और नेकोकारों की इबादत को कबूल किया है, और उनकी सिफारिश गुनहगारों के हक में कबूल की है, तो सिदरा पर रहने वाले फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकबीर में अपनी आवाज़ों को बुलंद फरमाते हैं, तक़दीस बयान करते हैं। तो उनकी आवाज़, इतनी बुलंद आवाज़ से वो तकबीर कहते हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की तक़दीस बयान करते हैं।
تو وہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ جنت نعیم اس کو سنتی ہے، کہ جنت عدن اس کو سنتی ہے، جنت الماوا اس کو سنتی ہے، اور پھر وہ آواز جنت الفردوس سنتی ہے، اور سب تمام جنتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر اور تحمید و تقدیس و تسبیح بیان کرتی ہیں اور اپنی آوازوں کو بلند کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ آواز عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور عرش جب سنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت اور بخشش کی ہے، تو عرش بھی رب کائنات کی تکبیر بیان کرتا ہے، آواز وہ بھی بلند کرتے ہوئے رب کی تقدیس و تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو رب کائنات پوچھتا ہے عرش تو نے آواز کیوں بلند کی؟ تو عرش کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رات امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر تھی، اور تو نے ان کے نیکوکاروں کی عبادت کو قبول کیا ہے اور ان کی سفارش کو گنہگاروں کے حق میں قبول کیا ہے، اور ان کی تو نے مغفرت فرما دی ہے، بخشش فرما دی ہے۔ تو رب کائنات جب یہ سنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو نے ٹھیک کہا، تو نے ٹھیک کہا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، امت محمدیہ کی میری نظر میں امت محمدیہ کی وہ عزت، وہ شرافت اور کرامت ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں وہ چیز گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات اس سے اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، امت محمدیہ سے، یعنی ہم سے ہمارا رب کتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری عزت و شرافت رب کی نظر میں کیا ہے کہ رب کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے خیال و وہم میں وہ چیز گزری نہیں کہ رب کی نظر میں امت محمدیہ کی کیا عظمت و شرافت ہے اور کیا کرامت اور بزرگی ہے۔ اتنی مقدسوں والی رات ہے لیلۃ القدر، ایسی فضیلتوں والی رات ہے لیلۃ القدر۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس رات کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر و تحمید بیان کریں اور عبادت الہیہ میں رات گزاریں، رب کائنات سے سلامتی اور عافیت کی دعا مانگیں، کیونکہ رات آفات سے سلامتی والی رات ہے۔ سلام، رب نے کہہ دیا سلام، اور آج ہم سب آفات اور بلیات سے سلامتی چاہتے ہیں۔ دیکھیں لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں پوری دنیا میں دیکھیں ہر کوئی پریشان ہے اس وبا کو لے کر، کورونا کی اس وبا کو لے کر ہر کوئی پریشان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ایسی پریشانی اس سے قبل کبھی دیکھی نہیں گئی۔ جتنے لوگ زندہ ہیں جانتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں، ایسی پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ آج کی رات ہم رب کائنات سے اس وبا اور آفت سے سلامتی کی دعا مانگیں کہ مولا تو سلام ہے، تو سلامتی کو پسند فرماتا ہے۔ آج کی رات بھی سلامتی والی رات ہے، مولا کریم ہم سب پر سلامتی والا معاملہ فرما دے، ہم سب کو اس وبا، امراض سے، مہلک بیماریوں سے، شر پسندوں کے شر سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنے سلامتی میں داخل فرما دے۔ تو بہرکیف
नाज़रीन इकराम, आज की रात कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, रब से अपनी गुनाहों की बख्शिश और अपने खताओं की बख्शिश मांगें। उनके गैरतुल क़द्र की खुसूसी दुआ जो तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत की गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो मैं क्या दुआ मांगूं, मैं क्या कहूं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये दुआ तालीम फरमाई। ऐ आयशा, ये यूं कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, इन्नका अफ़ू, बेशक तू माफ करने वाला है, करीम, करम करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, और माफी को तू पसंद फरमाता है, माफ करना तुझे पसंद है, फ़अफ़ु अन्नी, बस तू मुझे माफ फरमा दे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये दुआ तालीम फरमाई, जो सुनन तिर्मिज़ी में रिवायत की गई। और एक हदीस मुबारका जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत की गई, जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है तो मैं इस रात में ये दुआ बकसरत मांगूंगी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैं ये दुआ कसरत से मांगूंगी। कौन सी दुआ? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत और आफ़ियत का सवाल करती हूँ, तुझसे मग़फ़िरत भी चाहती हूँ मौला, और आफ़ियत का सवाल भी करती हूँ मौला। मग़फ़िरत और आफ़ियत वाली रात आज की रात है, सलामती वाली रात है। तो नाज़रीन इकराम, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, आज की रात ज़ाया होने न दें। उनकी लैलतुल क़द्र साल में एक दफ़ा आती है, साल में एक दफ़ा आती है दोस्तों। इस मुबारक रात की मुबारक सातों को ज़ाया हरगिज़ हरगिज़ होने न दें, क्योंकि आज की रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है। फरिश्ते नाज़िल होते हैं, फरिश्ते घरों में दाखिल होते हैं। हाँ, ये भी बता दिया गया है उन घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिन घरों में कुत्ते हों, जिन घरों में खिंजीर हो, इन घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मोमिनीन से मुलाकात करते हैं फरिश्ते, उन्हें सलाम कहते हैं, उन्हें दुआओं से नवाजते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आया है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब क़द्र होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात में उतरते हैं और हर उस खड़े बैठे बंदे को दुआएं देते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। हदीस मुबारका शुअबुल ईमान में रिवायत की गई है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कोई मामूली चीज़ नहीं है। हर खड़े बैठे यानी खड़े खड़े होकर, चाहे वो जिक्र इलाही में मशगूल हो या बैठा हुआ जिक्र इलाही कर रहा हो, इबादत में मशगूल हो, सलवात पढ़ रहा हो, हर कोई वो शख्स जो इबादत में मशगूल है, उसके लिए मुजदा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये बशारत दी जा रही है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस खड़े बैठे बंदे को दुआएं देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार होती है, एक रिवायत के मुताबिक उनसे मुलाकात की जाती है, उन्हें सलाम करते हैं मलाइका। तो बहरकैफ दोस्तों, बड़ी मुबारक रात लैलतुल क़द्र है। अब ये कौन सी रात है, इतनी अज़मत और बरकत वाली रात?
आखिर कौन सी रात है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए रब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से, तोहफा है। दुनिया का कोई बादशाह अगर हमें बुलाकर तोहफा दे दे तो हम उस तोहफे को कितना कीमती जानेंगे, कितनी उसकी हिफाजत करेंगे। ये तो कायनात के बादशाह का तोहफा है, आलमीन के बादशाह का तोहफा है, मालिकी यौमिद्दीन का तोहफा उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। तो इसकी हम कदर करना चाहिए दोस्तों। कदर ये है कि इस कदर वाली रात में कसरत से इबादत करें। अब ये रात कौन सी रात है? शारीहीन फरमाते हैं, शारीहीन हदीस साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मौक़िफ़ भी था। बाज साहबा ने कहा 21वीं, बाज ने कहा 23वीं, बाज ने कहा 25वीं, बाज ने कहा 27वीं, बाज का मौक़िफ़ 29वीं। तवातुर के साथ ज्यादातर जो रिवायतें मिलती हैं कि वो कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। वैसे तो आम बताया गया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो मालूम हुआ कि ये माह रमज़ान मुबारक के महीने की आखिरी ताक रातों में है। अब आखिरी ताक रातों में कौन सी रात है और वो कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, और जमहूर का यही मौक़िफ़ है कि वो 27वीं शब है, रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है, यानी जो आज की रात है। इस पर माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मुदल्लल तौर पर तफसीलन मौलाना सैयद गौस मदनी साहब ने रज़वी दामा ज़िल्लुहु व दामा मजदुहु खलीफे हुज़ूर अशरफुल फुक़हा हज़रत क़िबला ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है। वो भी सुन्नी रज़वी चैनल के ज़रिए यूट्यूब पर वो क्लिप भी मौजूद है कि जिसमें आपने बताया कि वो 27वीं शब लैलतुल क़द्र है। तफसीलन उन्होंने इस पर रोशनी डाली। इजमाली तौर पर मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि वो रात आज यानी 27वीं रात है। तवातुर के साथ अहादीस 27 रमज़ान मुबारक यानी 27वीं शब को लैलतुल क़द्र करार देती हैं। हदीस मुबारका में आया है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के लिए खड़े हुए। रात का हिस्सा था, 23वीं शब रमज़ान मुबारक की। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी साहबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि 23वीं रमज़ान मुबारक को हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इबादत के लिए खड़े हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 ऑफ द नाइट, यानी 23 रमज़ान मुबारक का 1/3 ऑफ द नाइट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। हम भी इबादत करते रहे, सरकार के साथ थे हम भी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और कहा 1/3 नाइट इबादत की। फिर आपने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और कहा जो जिस चीज को, जिस लैलतुल क़द्र को तुम तलाश कर रहे हो, जिस चीज के तुम तलबगार हो, मेरे गुमान में वो आज की रात नहीं है, वो ये रात नहीं है, आगे आएगी। तो फिर साहबी रसूल फरमाते हैं 25वीं रात को हम फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। 25वीं रमज़ान मुबारक थी, इस उम्मीद पर कि ये 25वीं रमज़ान लैलतुल क़द्र होगी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम इबादत करते रहे यहाँ तक कि आधी रात
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम इबादत किए और फिर आधी रात इबादत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और कहा कि मेरे गुमान में ये है कि वो जिस रात को तुम तलाश कर रहे हो, यानी लैलतुल क़द्र को जो तुम तलाश कर रहे हो, वो आज की रात भी नहीं है, आगे आएगी। तो फिर साहब रसूल फरमाते हैं कि फिर हम 27वीं शब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत के लिए खड़े हुए, यहां तक कि 1/3 रात गुजरी, सरकार इबादत करते रहे, हम भी साथ इबादत में थे। आधी रात गुजरी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे, हम भी करते जा रहे थे, सरकार के साथ थे। यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फरमा दी, यानी रात भर इबादत करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई और फिर खामोशी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न फरमाए, खामोशी से निकल गए। यानी पूरी रात सरकार ने इबादत की और कुछ कहा भी नहीं। और जब 25वीं रात थी तो सरकार ने 1/3 रात इबादत की और कह दिया कि तुम लोग जिसको तलाश कर रहे हो वो लैलतुल क़द्र मेरे गुमान में आज की रात नहीं है। 25वीं को भी फरमा दिया और 25वीं को आधी रात इबादत की। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जिसको तुम तलाश कर रहे हो 25वीं मेरे गुमान में नहीं है। फिर आगे जब 27वीं रात को आपने इबादत की तो हदीस मुबारक में आता है सुबह हो गई, यानी वक्त सुबह तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहे और सहाबा भी साथ थे। और फिर ऐसा भी नहीं कि पूरी रात इबादत की और सरकार ने कुछ कह दिया कि ये रात वो नहीं है, नहीं, सुम्मा सकता, खामोशी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो सरकार का पूरी रात इबादत करना और कुछ न कहना, इसके मुकाबले में कि 23 और 25 को 1/3 रात इबादत की और आधी रात इबादत की और कहा कि तुम जो चीज को तुम जिस चीज के तलबगार हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, वो लैलतुल क़द्र मेरे गुमान में आज की रात नहीं है। इसके मुकाबले में ये 27वीं रात को सरकार का मुकम्मल रात इबादत में गुजारना और खामोशी से सुबह चले जाना इस बात की दलील है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारतन ने फरमा दिया कि वो रात 27वीं रात है। तवातुर के साथ रिवायत में आया है पर प्यारे आका सल्लल्लाहु आखिरी अशरे में, खुसूसी तौर पर आखिरी अशरे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अपने अपने ख्वाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाबों को सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ख्वाबों से ये बात मालूम होती है कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। यानी ख्वाबों की ताबीर बयान करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाबों को सुनने के बाद ये मालूम होता है कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अजील सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मौक़िफ़ भी यही था कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। और बुजुर्गान दीन का, जमहूर उलमा इकराम का, फुक़हा का यही मौक़िफ़ था कि वो रात 27वीं शब है। और अगर मुसलमान इसको जानते हो कि वो 27वीं शब है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नज़र में भी क्या बईद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला 27 ही को लैलतुल क़द्र करार दे दे, क्योंकि रब कायनात को बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए बहाना चाहिए। रब चाहता है कि बंदा किसी तरह मेरे पास आ जाए, मेरी तरफ रुजू कर ले। और आम्मतुल मुस्लिमीन 27वीं रात रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को लैलतुल क़द्र समझते हैं, जानते हैं। तो रब कायनात की रहमत से क्या चीज बईद है कि रब कायनात वाक़ियतन 27वीं को लैलतुल क़द्र करार दे दे। हदीस मुबारका में यह भी आया है, लेकिन कोई ये दावे के साथ 100% गारंटी के साथ ये कोई नहीं कह सकता कि 27वीं ही लैलतुल क़द्र है। क्यों?
उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि ताख़रातों में तुम तलाश करो, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना उस हदीस मुबारका में इस बात की दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी के साथ ये बात नहीं बताई, अलबत्ता इशारतन फरमा दिया, और अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। बेशुमार रिवायतों में 27 रमजान मुबारक को लैलतुल क़द्र होने का सबूत मिलता है। इसके अलावा चंद अहादीस में दिगर ताख़रातों को भी लैलतुल क़द्र होने का सबूत मिलता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम रब कायनात से यही दुआ मांगते हैं और यही तमन्ना और उम्मीद रखते हैं कि लैलतुल क़द्र रब कायनात उम्मत मोहम्मदिया के लिए वो 27वीं शब ही फरमा दे, क्योंकि मोमिनीन और मुसलमान जिस चीज को अच्छा जानते हैं और जिस चीज के लिए गवाही दे देते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ भी वो चीज अच्छी हो जाती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज को मुसलमानों के लिए वाजिब करार दे देता है। मोहतरम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र यानी क़द्र वाली रात को गैर मुतय्यन क्यों रखा गया? यानी साफ तौर पर, अब जैसा जुमा की रात आ गई, जुमा की रात साफ तौर पर उसका जिक्र है। लैलतुल क़द्र ये पर्टिकुलर दिन होगी, पर्टिकुलर रात होगी, पर्टिकुलर तारीख की रात होगी, ऐसा क्यों नहीं बताया गया? एक हदीस मुबारका में आया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये इल्म दिया गया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम करा दिया गया था कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। सरकार खुशी से बाहर तशरीफ लाए ताकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बता दे कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। जो ही बाहर निकले तो देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। जब उनके झगड़े को देखा, देखिए झगड़े की नहूसत क्या है, झगड़ते देखा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद रब्बे कायनात मुझसे वो चीज भुला दी गई कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। झगड़े को देखा, दो मुसलमान आपस में लड़ते देखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन वो बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से भुला दी। लेकिन वो भुलाना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है, और शब क़द्र की गैर मुतय्यन होने की एक अहम वजह यह है, जैसा कि मौत के वक्त को किसी को नहीं बताया गया कि कौन कब मरेगा। मौत का वक्त भी गैर मुतय्यन है। अदम तय्युन की वजह यह है कि अगर कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि अगर बंदे को बता दिया जाए कि फला रात लैलतुल क़द्र है, गारंटी के साथ, तय्युन के साथ, तो बस वो रात इबादत कर लेगा और कहेगा, और दूसरे रात इबादतों से गुरेज करेगा, कोताही बरतेगा, लेजी हो जाएगा, कहेगा कि मैं एक रात ऐसी इबादत कर लिया हूँ लैलतुल क़द्र की जो 1000 महीनों से अफजल है, अब दीगर रातों में इबादत करने की क्या जरूरत और उसकी अहमियत क्या है। तो ये हिकमत एक इसमें छुपी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता ये है कि बंदा लैलतुल क़द्र की तलाश में कम से कम 5 रातों को मेरी तरफ रुजू हो जाए। इतना तो है कि 5 ताक रातें अगर कोई जाग रहे, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए, जिक्र इलाही में मशगूल रहे, सलवात, कसरत से दरूद और सलवात पढ़ता रहे, इल्म दीन सीखता सिखाता रहे, यकीनी तौर पर उसको लैलतुल क़द्र मैसर हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यही मामला है कि मौत के वक्त को भी बताया नहीं गया, उसके अदम ताय्युन की भी यही वजह है कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि मैं मेरी उम्र के 70वें साल मरने वाला हूँ, तो वो पूरी उम्र
69 ईयर्स, बल्कि और कुछ ज्यादा, मरने से कुछ पहले तक भी कहेगा कि अभी मुझे तो मरने के लिए वक्त है, मैं थोड़ी ऐश व आराम की जिंदगी गुजारूं, दुनिया की लज्जतें उठा लूं, फिर उसके बाद जब मौत का वक्त करीब आएगा तो मैं रब की बारगाह में तौबा करूंगा, इस्तिग़फ़ार करूंगा और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी चाह लूंगा। तो पूरी जिंदगी वो गुनाहों में, मासियतों में, नाफरमानियों में गुजार लेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत के वक्त को मुतय्यन नहीं फरमाया, बताया नहीं लोगों को कि तुम्हारी मौत ये टाइम पर होगी, ये उम्र में होगी, ताकि बंदा हमेशा मौत के डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से बचता रहे और उसकी इताअत में अपनी जिंदगी गुजारता रहे। बिल्कुल ऐन हिकमत शब कद्र को के आदम तायुन में भी वही हिकमत नजर आती है कि अगर बंदे को मालूम हो जाए कि शब कद्र फलां एक रात है, फलां तारीख की रात शब कद्र है, तो बंदा कहेगा कि दूसरे रातें इबादत करने की क्या जरूरत, मैं तो वही रात इबादत कर लूंगा। और इबादत करने के बाद कहेगा कि मुझे दूसरे मैंने तो 1000 महीनों से बेहतर वाली रात में इबादत कर ली, अब दूसरे रातों की इबादत की क्या जरूरत। तो रब्बे कायनात ने शब कद्र को छुपाकर, इतना तो राज फाश हुआ कि वो लैलतुल कद्र रमजान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और उन रातों में सबसे ज्यादा तवातुर के साथ जो रिवायतें आई हैं, जो अजर सहाबा इकराम का मौक़िफ़ रहा है, जमहूर का मौक़िफ़ रहा है, वो आज की रात के ताल्लुक से है। इससे बढ़कर और इशारा क्या मिलना चाहिए। बंदे को चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें, गिड़गिड़ाएं, मांगे रब से, क्योंकि वैसे तो हर रात रब्बे कायनात तहज्जुद के वक्त, रात के पहर में, आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाता है, यानी अल्लाह की रहमत खास आसमानी दुनिया पर मुतवज्जह होती है और निदा होती है रब की तरफ से, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई मुझसे तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, है कोई मुझसे कुछ मांगने वाला मैं उसको अता करूं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये तो हर रात रब की तरफ से निदा है और खुसूसियत के साथ आज की रात रब की तरफ से सलामती का ऐलान होता है, मग़फ़िरत का ऐलान होता है, क्योंकि रब की तरफ से तोहफा है और ऐसी रात दूसरी किसी उम्मत को अता नहीं हुई। तो अदम तायुन की ये एक वजह है। इसके अलावा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह दिगर अशिया को पोशीदा रखा, मसलन अल्लाह ने अपनी रज़ा को इताअतों में पोशीदा फरमाया ताकि बंदे इताअत में रग़बत हासिल करें, अपने गज़ब को गुनाहों में पोशीदा फरमाया ताकि हर गुनाह से बचते रहें, अपने वली को लोगों में पोशीदा रखा ताकि लोग सबकी ताज़ीम करें, दुआ की मकबूलियत को दुआओं में पोशीदा रखा ताकि वो सब दुआओं में मुबालगा करें, यानी कसरत से दुआ मांगे। इसमें आज़म को अस्मा, दूसरे अस्मा में पोशीदा रखा ताकि वो सब अस्मा की ताज़ीम करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। और नमाज उस्ता यानी बीच वाली नमाज को दीगर नमाजों में पोशीदा रखा ताकि तमाम नमाजों की पाबंदी करें। तौबे की कबूलियत को पोशीदा रखा ताकि बंदा तौबे की तमाम अक़साम पर हमेशगी इख्तियार करे, और मौत का वक्त पोशीदा रखा ताकि बंदा खौफ खाता रहे। इसी तरह शब कद्र को भी पोशीदा रखा ताकि लोग रमज़ान की तमाम रातों की ताज़ीम करें और इसमें इबादत करते रहें। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चंद वजूहात बताए कि क्या वजह है कि रब्बे कायनात ने इसको पोशीदा रखा है, अदम तायुन की क्या वजह है, क्यों छुपा कर रखा है कि कौन सी रात है।
मोहतरम नाज़रीन इकराम, बहरे कैफ ये महीना बड़ा मुबारक महीना, अब इसके चंद दिन बाकी रह गए हैं। तकरीबन 24 मई 2020 या 25 मई 2020 को ईद होगी। 27वां दिन, 27वीं शब शुरू हो गई है। चंद रोज बाकी रह गए हैं। चंद रोज में भी आज की रात की कुछ सातें बाकी रह गई हैं। तो हम ये हमारा बैठना, कहना, सुनना, इल्म दीन, इल्म कुरान, इल्म हदीस का पढ़ना, सुनाना, बयान करना, ये सब आमाल सालिहा में इन सब का शुमार किया जाता है और ये भी इबादत है। क्योंकि जब बंदे को मालूम होगी कि रात कौन सी रात है, किस कदर, किस फजीलत वाली रात है, कैसी शराफत और बुजुर्गी वाली रात है, तो सुनने के बाद इबादत में बड़ा मजा आ जाता है। किसी चीज की इल्म न रखने के बावजूद अगर कोई शख्स उसकी वो चीज को अमल में लाता है और वो दूसरा शख्स जो वो अमल कर रहा होता है उसके फजाइल से वाकिफ होकर अमल करता है, तो उसकी इबादत और उसके अमाल में लज्जत पैदा हो जाती है और उसमें और शौक बढ़ जाता है, वो जज्बा पैदा हो जाता है। तो वाकई में हमें जो इबादत कर रहे हैं उसका ये सिला है, ये उसका मजा है, उसकी ये फजीलत है। जब बंदा फजीलत को जानकर, उसकी अजमत को जानकर अमल करता है तो यकीनी तौर पर उसके इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है। तो आप हजरात का ज्यादा वक्त न लेते हुए बस इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि लैलतुल क़द्र सलामती और बुजुर्गी वाली रात है। इस रात में कसरत से दरूद व सलाम पढ़ें, इबादत इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में, ज़िक्र में, तस्बीह, तहमीद व तक़दीस व तहलील में रतबुल लिसान हो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें और इस रात की मुबारक सातों को हरगिज़ ज़ाया होने न दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करते रहें, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, ताकि रब्बे कायनात हमें, हमारे माँ बाप को, अइज़्ज़ा व ख़ालिद को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आम्मतुल मुस्लिमीन और मुस्लिमात को, मोमिनीन और मोमिनात को रब्बे कायनात बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा दें और हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा दें। आमीन। और सालिहीन के नेकोकारों की इबादतों के तुफ़ैल अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे, गुनहगारों को राह रास्त पर ले आए, जो सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं, राह हक को छोड़ दिए हैं, मौला करीम उन्हें दोबारा सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा दे। और जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, सीधी राह चल रहे हैं, मौला करीम उनकी राह में इस्तिकामत अता फरमाए, साबित कदमी अता फरमाए। आमीन। और हम सबको मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर कायम और दायम फरमाए, बदअकीदगी की वबा से महफूज रखें, कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखें। आमीन। जो कोरोना वायरस वो वबा है जो जान ले लेती है, और वहाबियत और बदमजहबियत वो वबा है जो ईमान छीन लेती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानलेवा अमराज और ईमान लेवा बदअक़ाइद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। और हम सबको आज की रात की मुबारक और
مسعود ساتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرور فرمائے. آمین. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.